all had joined the call, or some are there who had still not joined the call? रोशन बाकी है, रोशन बाकी है, रोशन. Okay. I'll wait for 2 minutes. Okay. Where is Roshan and Jitesh? I think Jitesh was there for. I think Jitesh was there for yesterday's lecture. Jitesh is in 8th standard only, na? Or he had joined some Yes. another. No, miss. It is No. 8th standard. Yes or no? नहीं, because what happens sometime it happens कि लिंक दे देते हैं ग्रुप पे और कुछ अलग स्टैंडर्ड के बच्चे कुछ अलग स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि ओ दिस इज नॉट माय, दिस इज जस्ट लाइक ओ दिस इज नॉट माय क्लासरूम. Hence I'm asking. But I think Jitesh था मेरे पहले किसी लेक्चर में, but he was not there for yesterday's lecture. Jitesh, are you there? Yes, miss. हाँ. You was there for yesterday's lecture? Yes, miss. Okay. Then फिर मुझे याद नहीं आ रहा है. Okay. Roshan has still not joined, but I think it is 4:22. We had already wasted our 7 minutes. We will now start. Okay. We have to start another lesson today. Okay. So हम लोग थे कल वायरस पे. Okay. Virus have the general measurement as 10 nanometer to 100 nanometers. Okay. Very first thing I want to tell you, in your textbook, the measurement has written, but for your information, I want to tell you in some simpler manner. Nanometer, 1 nanometer is how much? How much meter? Anyone knows? One 1 nanometer. millimeter. Millimeter is different. I'm asking 1 nanometer is equals to how much meter? Teacher, 1 lakh meter. No. Nanometer I'm asking. Okay, how many 1 micrometer is how much meter? अरे बोलो. 1 lakh.
I am asking the smaller number. You are telling me bigger number. In lakhs, you are telling me. No, I am, and that is wrong answer, of course, but still, तुम लोग पूरा opposite बोल रहे हो. Teacher, 1. I am asking 1 nanometer is equal to how much meter? You are not aware? See, सबको दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, मैंने कुछ तो लिखा है, दिख Yes, miss. Yes, miss. 1 nanometer. Nano. 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meter. मतलब कितना? 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meter. 10 raised to minus 9 meter मतलब 0.000000 again 1 0 and 1. इतना सा मीटर, ये 1 नैनोमीटर है, ये वैल्यू 10 raised to minus 9. कितने जीरो होते हैं? You have this ये raised to वाला thing you can write ना. You people are in 8th standard, right? Yes. Yes, teacher. देखो I don't worry. 10 raised to minus 9 मतलब क्या? 10 का ये जो 0 है, now how you will write 10 as 0 point this is a 10, बराबर? Yes, teacher. Correct ना? This is complete number है. Yes. Now minus 9 means what? You will go, ये जो point है ना, इसको तुम 9 बार इस तरफ माइनस की तरफ लेके जाओ. एक स्केल था तुम लोगों को 0 1 and यहाँ -1 -2 -3 like this. Yes. Yes. जब तुम लोगों ने प्लस माइनस का फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने कब सीखा? 6th या 5th में सीखा होगा, राइट? +1 and -1. अलजेब्रा तुम लोगों को 8th स्टैंडर्ड में आया, दैट आई नो, बट स्टिल ऐसा स्केल देखा ना तुम लोगों ने? 0 राइट साइड पे +1 देन +2. Yes, yes. Yes, miss. Yes. माइनस, teacher. करेक्ट? जब 10 raised to minus 9 में बोलती हो, व्हाट इज अ 10? 10.0. तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को तुम 9 बार माइनस की तरफ लेके जाओ. गॉट इट? Yes, teacher. उससे जो फिगर आएगा दैट इज 0.000000001 मीटर. इतना सा मीटर, इतना सा एक वायरस होता है. दैट इज हमारे लिए पॉइंट. मैथमेटिक्स नहीं है, हम तो मैथ्स में तो चले उससे भी छोटा होगा. हाँ ऑफ कोर्स. इसीलिए कल मैंने तुम लोगों को स्केल निकालने को बोला. उसमें से मैंने पहले में सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर में 1000, फिर अगेन 1000, ऐसा करके मैंने एक जो निकाला, दैट इज द वायरस. इतना छोटा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नैनोमीटर. नेक्स्ट, तुम लोगों के बुक में 10 raised to 9 दिया है. अरे 9 नहीं, वो -9 होना चाहिए. और सेकेंड इज माइक्रोमीटर. फॉर माइक्रोमीटर, this micro like this you will write micro. Okay, Yes. इसको तुम लोग Yes, teacher. इसको तुम लोग माइक्रो बोल सकते हो या माइक्रॉन बोल सकते हो. अभी यहाँ देखो, माइक्रो का M मैंने स्मॉल लिखा है. जब मैं माइक्रॉन लिखूंगी, मेरे कहने का मतलब कैपिटल. इसको, यस करेक्ट, M यहाँ पे माइक्रोमीटर या फिर माइक्रॉन. इसको तुम माइक्रॉन बोल सकते हो या माइक्रोमीटर बोल सकते हो. इसकी वैल्यू होती है -6. समझा? Yes. Yes, अब- teacher. Yes. जैसा ये मैंने लिखा इस मीटर के लैंग्वेज इसमें, तो ये 10 raised to -6 कैसे होगा? Teacher, 0.0000001. इसको मैं 6 बार अगर वहां ले जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, तो एक 10 आएगा मेरा, आगे एक नंबर आएगा. तो 10 raised to -6 मतलब तुम लोगों को 1 के पहले 5 बार
जीरो लगाना है, 9 मतलब 1 के पहले 8 बार जीरो लगाना है। हम ये वैल्यू मैं तुम लोगों को इसलिए बता रही हूँ, देखो इतना सा मीटर, मतलब ये वैल्यू के पकड़ के अगर तुम लोग अपनी स्केल निकालोगे, उसको 0.0001 पे लेके जाओगे तो वो कितना टाइनी बनेगा। सोचो वायरस इतने छोटे होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्म, ये जो मैंने तुम लोगों को बताया जस्ट फॉर इमेजिनेशन की वायरस कितना छोटा होता है, और ये तुम लोगों को याद ही रखना है। नैनो मीन्स 10⁻⁹, माइक्रो और माइक्रोन मीन्स 10⁻6। समझा? Yes, teacher. Yes, miss. ओके, सो वायरसेस की रेंज क्या है? 10 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर। 100 nanometer. Okay, teacher. वायरसेस आर सो टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं वायरस, वेरी वेरी टाइनी। एक बैक्टीरिया के अंदर 1000 तक जा सकते हैं वायरसेस। ओके, सो वी विल रीड आउट द वायरस नाउ। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर, इसको ना बहुत बोला गया है कि ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वायरसेस में जान होती है डिपेंडिंग अपॉन होस्ट। ओके, जैसे उसको होस्ट मिलेगा वो उसका आरएनए डीएनए खाएगा। जैसे आई थिंक कृष्णा ने शायद कल बोला था कि वायरस डीएनए आरएनए ये लेकर खुद रेप्लिका बन जाते हैं, सेम वायरसेस ऐसे ही करते हैं। आदित्य, यू गॉट द Yes, पॉइंट? teacher. Yes. Yes, miss. गुडिया, योशिता, Yes, miss. हमारा लेक्चर अभी आधा घंटा ही चलने वाला है, प्लीज एवरीवन फोकस। ओके, Sorry, miss. generally viruses are not considered as a living organism or they are said to be organism at the age of the living or non living। मतलब वो एक तो लिविंग मोड में या नॉन लिविंग मोड खुद को स्विच कर सकते हैं। नॉन लिविंग मतलब ऐसा नहीं, अगर सपोज मैंने इस पेन के ऊपर यहाँ पर एक वायरस ला के रख दिया, ओके, और आजू बाजू में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं है, सपोज कोई इंसान नहीं आया या फिर कोई लिविंग नहीं आई, और अगर मैं उसको बहुत सालों बाद, 1000 साल बाद भी देखूँ ना, तो वायरस यहाँ का यही रहेगा, तो कहीं गायब नहीं होगा। यू कांट मूव हियर एंड देयर। लेकिन यहाँ पे इस पेन के आजू बाजू में कोई होस्ट आ गया या मैंने इस पेन को पकड़ लिया, तो वायरस मेरे हाथ पे आ जाएगा, और ना तब उस वायरस को मेरे स्किन के सेल्स मिल जाएंगे जो कि होस्ट है उसके लिए। समझा? Yes. ऐसे इसलिए उन्होंने बोला है ऑर्गेनिज्म विच इज एज ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, वायरसेस आर एक्सट्रीमली, हाँ ओके, वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही आप स्टडी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको कहाँ मिलेगा पता है? No. टीचर पता है? लैब्स में, लैब। लैब में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कोई वो छोटा लैब नहीं होगा, बहुत बड़े लैब में ही आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखेगा। ओके, अगर तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की और अच्छे इसमें गए, सपोज IIT मैं बॉम्बे, भी माइक्रोस्कोप लाने वाला हूँ, दो या बट लाने वाला हूँ। that will be a simpler वाला माइक्रोस्कोप। I am telling you about इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप लोग बड़े ये हो जाएंगे और IIT बॉम्बे में वगैरह जाएंगे, तो आपको वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वो भी डिफरेंट वैरायटी के। आप माइक्रोस्कोप के टाइप्स भी 11th-12th में पढ़ने वाले हैं। वहां पे जो माइक्रोस्कोप आप सीखोगे ना, वो भी आपको IIT बॉम्बे में दिखेंगे, बाकी वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। दे आर वेरी बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप यानी क्या? बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंसेस होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। जो पहले हमने देखा वो एकदम सिंपलर वाला था। उसमें जो लेंस हम ऊपर लगाते हैं ना, एक लेंस हम ऊपर लगाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे 3 तरह के पावर होते हैं, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो वो 2 लेंसेस हो गए, सो दैट इज अ बाइनोकुलर, 2 लेंसेस। ओके, बेसिकली कुछ सिंपलर माइक्रोस्कोप होते हैं जो बाइनोकुलर होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें 3 इससे भी काम होता है। मोस्टली द माइक्रोस्कोप आर विद 2 लेंसेस ओनली। ओके, चलो हम वायरसेस पे वापस आ जाते हैं अभी। ओके, वायरसेस बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर 100 to
सॉरी 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये भी हमने कल बोला था. 10 to 100 माइक्रो नैनो हाँ यस यस कृष्णा, कुछ बोला क्या तुमने? हाँ 10 to 100 नैनोमीटर. no I am not, I am reading another line. 10 to 100 times smaller than bacteria, मैं वो पढ़ रही थी. Measurement we had already discussed. Okay, yeah, and they can only be seen under electron microscope. जैसे मैंने तुम लोगों को कल इमेजेस दिखाए थे ना, वो सिंपल माइक्रोस्कोप में से देखे. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही लगेगा हमें वायरस को देखने के लिए. Okay, they are found in the form of independent particle. Viruses is actually a long molecule of DNA and RNA. DNA RNA का फुल फॉर्म दिया है, इसको याद रखना. DNA is डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. करेक्ट. सो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करते हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको मिलेगा वो उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट सेल. वो वायरसेस उसके अंदर पहले पेनिट्रेट करेंगे, फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए लेंगे, खुद रेप्लिका बनाएंगे, उस सेल से बाहर आएंगे और वो सेल को मार डालेंगे. Same thing is written here. Viruses survive only in living plant and animal cells and produce their own protein with the help of host cell. जिसके पास वो है, create their numerous वो खुद का रेप्लिका बनाते हैं, मतलब वो खुद रिप्रोड्यूस होते हैं. They can destroy the host cell and become free. These free viruses again infect. फिर ये वायरस वापस दूसरे न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. ओके, वायरसेस हैव दिस थिंग ओनली, मतलब वायरसेस की यही खूबी है. वो पहले अच्छे सेल की तरफ जाएंगे, उसमें पेनिट्रेट होंगे, उसका डीएनए लेंगे, ठीक है, 1 से 1000 बन जाएंगे और फिर उस लिविंग सेल्स में से बाहर आके फ्री हो जाएंगे और फिर वो लिविंग सेल्स को मार डालेंगे. चुपचाप नहीं रहेंगे, मार डालेंगे. सो दिस इज द थिंग ऑफ द वायरस. ओके, viruses cause many diseases to plants and animals. Yes, viruses are dangerous. इसकी वजह से वो डिसीज क्रिएट करते हैं ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट्स. ओके, सो डू यू नो में आगे लिखा है उन्होंने कुछ वायरसेस के बारे में. ह्यूमन को जो इन्फेक्ट करते हैं वो है पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स वायरस. कैटल को करते हैं पिकोरना वायरस, प्लांट्स को टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस. बैक्टीरिया को भी, ये वायरसेस खुद इतने छोटे हैं, ये बैक्टीरिया को भी मारते हैं और जो बैक्टीरिया को मारते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं. सो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस होगा, वो बैक्टीरियोफेज होगा. दैट इज बैक्टीरिया को किल करने वाला, खाने वाला, लाइक दैट. ओके, या तुम लोगों का लेसन इतना ही था. हम लोग सिर्फ वायरस के लिए मतलब बचे हुए थे. ओके, एक बार ये लेसन देखो, अगर कुछ नहीं समझा है तो पूछो. जस्ट गो थ्रू करो एक बार ये, और वायरस एक बार ओके टीचर. ओके.
आदित्य, टीचर नो डाउट। had you gone through the lesson? यस टीचर। Yes, miss. ओके एक बार जरा हम लोगों से कंसल्ट करना था। जस्ट टेल मी वन थिंग, ये तुम लोगों का इंडेक्स पेज है। एनीवन हैव आइडिया कि तुम लोगों को सेम वन है? आई थिंक यस टीचर सेम है। यस टीचर सेम है। आई एम आस्किंग फर्स्ट के लिए कौन से लेसन तक है सिलेबस? नहीं पता फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ फर्स्ट यूनिट बताओ चलो। मिस 9th अलग है। टीचर ने बोला था। हाँ आई थॉट मिस बट इधर लिखा भी हुआ है। ओके गाइस, तुम लोगों का स्कूल एक है या अलग अलग वो भी मुझे नहीं पता, तो आप लोगों को जितना सिलेबस के बारे में पता है मुझे अभी शेयर कर दो। टीचर हमारा फर्स्ट यूनिट में आएगा 5 से 6 लेसन को भी पूछ के देखता हूँ कल। गाइस आप लोग पूछो। यस मिस वी विल आस्क। Yes, yes. चलेगा मिस। या सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे ऑफिस से कॉल आया था। हाँ आई वॉज आस्किंग अबाउट सिलेबस, मतलब मुझे सिलेबस पता चल जाता ना तो थोड़ा बेटर होता। हाँ योशिता, यू टोल्ड मी 9th तक है ना सेम 1 के लिए, एंड कृष्णा यू कि 6th या 5 या 6 तक तुम्हें यूनिट में है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, राइट? हाँ यस मिस टीचर। सुनो ना मिस फर्स्ट यूनिट 4th अलग है और फर्स्ट सेमेस्टर 9th अलग है। यस टीचर वैसा ही है। फर्स्ट सेम हाँ 4th अलग यूनिट है, पर टीचर हम लोग इतना अच्छे से भी बोल नहीं सकते, फिर मालूम नहीं, पर है वही है शायद। नो लिस्ट हमें सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर का एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से लेसन तक है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मैंने लास्ट ईयर सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट सेम के लिए पढ़ाया था, इसलिए मुझे थोड़ा याद था। लेकिन तुम लोग कंफर्म करो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? क्योंकि हमारा अगर ऐसा हुआ कि हमने 9th तक आपका कवर हो गया और 10th नहीं हुआ और फिर पता चला कि 10th भी है, तो 10th हमारा बायोलॉजी का ही लेसन है, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कवर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिलेबस में अभी नहीं है ये सेमेस्टर के लिए, सो व्हाई टू स्टडी फॉर सेम्स 2? हम सेम 1 की ही अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। जितना सिलेबस हमारा है प्लीज एक बार तुम लोग कंफर्म कर लो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? अच्छे से ओके और बताना मुझे। ओके मिस। हमने फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर दिया है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। प्लीज लेसन रीड आउट करो एंड गो थ्रू करो, ओके? इसमें जो बैक्टीरिया के छोटे छोटे में ना, उसको दिमाग में फिक्स कर लो। कहीं पे भी कुछ भी उससे रिलेटेड सवाल आए ना तो ड्रॉ द डायग्राम, ओके? टीचर ओके हाँ 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 आप यस। एक्सरसाइज लोगे अभी? नो नो,
I'll not take the exercise. I'll directly go with the lesson. But मुझे डिस्कस करना था सिलेबस. हेल्थ एंड डिसीजेस, ये सेकंड लेसन भी हमारा बायो में आता है. बाकी फोर्स, प्रेशर फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स, इनसाइड एटम केमिस्ट्री, मैटर केमिस्ट्री, मेटल्स केमिस्ट्री, pollution again bio, and disaster management again bio. Okay. Teacher, who will teach us chemistry? मुझे नहीं पता. आपका केमिस्ट्री का कोई टीचर? श्रद्धा मिस है. श्रद्धा मिस होगी. श्रद्धा मिस है. हाँ, फिजिक्स सिखाते. नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वही सिखाएगी टीचर. Okay, okay. I am just concerned with मेरा bio का syllabus. Okay. No, so I can consider that we are remaining with 3 lessons for Sem 1. Health and disease, pollution and disaster management. मोस्टली बायोलॉजी से एकदम रिलेटेड तो हमारा फर्स्ट लेसन ही था जिसमें हमने एक्चुअल बायो पढ़ा. बाकी का जो है वो तो जनरल बायोलॉजी है. ओके. सो हेल्थ एंड इट इज वेरी इजी लेसन. इसमें जो चीजें हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है वही चीजें हैं, खाली कुछ डेफिनेशंस है. टीचर डिजीज का है सारा. यस, डिजीज का है सिर्फ में सब कुछ. यस यस. हेल्थ एंड डिसीजेस जैसा इसका नाम है वैसा ही इस लेसन में दिया गया है. बहुत चीजें हैं जो हमें पता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता है. ओके, जो नहीं पता है वो हम सीखेंगे. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अभी हम ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. हेल्थ एंड डिसीज में सबसे पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप लोग जब स्कूल जाते थे, जब कोई ऐसा जमाना था कि आप लोग स्कूल में जाते थे, अभी तो घर पे ही है, तब आपको कभी बुखार आया या कुछ भी हुआ, कुछ सिकनेस लगा, तो फिर हम लीव लेते थे. राइट? हैव यू एवर टेकन द फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? यस, सबने लिया है. देन व्हाट हैपेंस व्हेन वी बिकम सिक? जब हम सिक हो जाते हैं. हाँ हाँ. When we sick, the pathogen enters in our body and they डिस्टर्ब हेल्थ. हमारी हेल्थ डिस्टर्ब कर देते हैं वो. yes. यस, देन वी से कि हम सिक हैं. और व्हेन पैथोजन एंटर्स, जैसा कृष्णा ने बोला, व्हेन पैथोजन एंटर्स वी गॉट सम सिम्टम्स लाइक हमें फीवर आ गया, हमें जुकाम आ गया और कफ हो गया, समथिंग लाइक हमें कुछ सिम्टम दिखेंगे, फिर हम बोलेंगे तो कि मुझे भी अभी वैसा ही हुआ है. मैं भी बीमार हूँ. now suffering from any sickness, fever? Yes, teacher. Fever, coughing. Had you done with your corona test? कोरोना होके भी जाए मुझे पक्का. Then 1 year ago. you had not took treatment now, मतलब अभी जो हुआ है तो तुमने ट्रीटमेंट नहीं लिया? No, मैं अभी पैरासिटामोल ले रहा हूँ बुखार के. ओके ओके. प्लीज, मतलब अभी ना ऐसा बाहर भी वेदर खराब है. दिस इज जस्ट, मैं जनरल बोल रही हूँ. मैं हेल्थ एंड डिसीज से बाहर आने के बोल रही हूँ. अभी आपको कोई भी सिम्टम दिखे गाइज, आपके परिवार में किसी को कुछ भी सिम्टम दिखे, प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए. चाहिए तो लीव्स ले लीजिए, आराम कीजिए. प्लीज मेडिसिन लीजिए सही से. और तुम लोग नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड. अगर तुम लोग स्कूल में होते तो सोचो कितनी मस्ती करते, कितनी भाग दौड़ करते, कितने खेलते कूदते. उतना तुम लोग घर पे नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल मैं आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज थोड़ा एक्सरसाइज करो. ठीक है? क्योंकि घर में बैठ बैठ के ना हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ खाते हैं और बैठते हैं. बट दिस इज नॉट विथ यू पीपल. मैं भी अपने लिए भी बोल रही हूँ कि मैं भी घर में रहती हूँ लैपटॉप के सामने, ऑलवेज वी वर्क, और तो हम हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते. एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड हमें पता चला है कि एक जान की कितनी कीमत है और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. प्लीज डू योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एनीथिंग, बट प्लीज कोई सिक मत हो जाओ. अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दो. ओके, घर का खाना सबसे बेस्ट खाना है. मैं इसमें रोज एक्सरसाइज करती हूँ. योशिता, इट्स यू. यस यस यस. एट कुछ तो करना चाहिए. और अगर आपसे नहीं हो I रहा do है, running at home only.
अच्छा, बट तुम्हें देख के लगता नहीं है कृष्णा कि तुम रनिंग करते हो? टीचर थोड़ा ही 15-20 मिनट। चलेगा, I'll consider this as true. Okay, but I mean to say कि खुद के हेल्थ का ख्याल रखो. Okay, so now we will go. Sometimes we feel good even without taking any medicine, and sometimes we need consult to doctor and take regular medicine in sickness. Why it is so? Depending upon हमारा हेल्थ कैसा है, हम एक तो कंसल्ट करते हैं या फिर हमें विदाउट किसी मेडिटेशन से हम अपने आप रिकवर हो जाते हैं. ऐसा भी होता है कि मुझे थोड़ा सीकनेस लग रहा था लेकिन मैंने कुछ नहीं, सिर्फ आराम किया या फिर अच्छे से खाना खा के मैं सो गई, फिर मैं उठी तो आई एम फीलिंग फ्रेश, मुझे अभी कुछ नहीं लग रहा है, लाइक दैट. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन हमारा हेल्थ, हमारी बॉडी क्या चाहती है हमसे, वो हमें एक बार पता चल गया और हमने वैसा कर दिया तो इट विल बी गुड. ठीक है, इट विल बी गुड फॉर आवर हेल्थ ओनली. सो हमें अभी हेल्थ का डेफिनेशन देखना है. व्हाट इज हेल्थ? Health is basically the state of complete physical, mental, and social well-beingness, and not merely the absence of any disease. हेल्थ मतलब क्या है? हेल्थ ये एक ऐसा स्टेट है हमारे ह्यूमन बॉडी का जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींगनेस होना जरूरी है, कंप्लीट वो भी, और इसमें डिसीजेस का होना नहीं चाहिए. बराबर, डिसीज फ्री बॉडी. करेक्ट, दैट इज द हेल्थ. हेल्थ का ये डेफिनेशन पूछते हैं, टिक कर लो, 1 मार्क ऐसे लिखो वहां पे, क्योंकि ये डेफिनेशन पूछते हैं. मिस नियरली मतलब मेयरली मतलब शायद. ओके, हेल्थ का डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर लो, देन हम जाते हैं डिसीजेस के डेफिनेशन की तरफ. हो गया. ओके, सो नाउ डिसीजेस क्या होता है? डिसीजेस एक कंडीशन होती है हमारे हेल्थ की या हमारे ह्यूमन बॉडी की. डिसीजेस इज अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. एक तो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर वाइज या फंक्शन वाइज कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर साइकोलॉजिकल हमें लग रहा है कि हमें ऐसा हुआ है. दैट इज ऑल्सो, इन टोटल दिस बोथ थिंग्स विल कम अंडर द डिसीजेस. तुम लोगों ने कभी देखा है, तुम लोगों को अल्जाइमर डिसीज का नाम तुमने सुना है कभी? What No, is teacher. No, no. ओके ओके. देखो, हम फिजियोलॉजिकल तो पता चल गया ना कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया स्ट्रक्चर वाइज या फंक्शन वाइज तो वो डिसीज हो जाएगा. बट व्हाट इज साइकोलॉजिकल? साइकोलॉजिकल अगर मुझे कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि ये है डिसीज, मैं किसको बोलूंगी? अल्जाइमर डिसीज इज अ काइंड ऑफ डिसीज जिसमें जब कोई इंसान जब बूढ़ा होता है ना, धीरे धीरे बंदा, उसके हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं. एक हार्मोन है उसमें, अगर वो कम हो गया तो हमारी मेमोरी कम हो जाती है. ओके, अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, वक्त के साथ, उम्र के साथ आप डिसीज आप भूल जाओगे धीरे धीरे एक एक चीज. अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट, आई टेल यू, मतलब दिस इज अ सैडेस्ट पार्ट ऑफ द अल्जाइमर्स पेशेंट की जब वो सुबह उठेंगे ना, मतलब रात भर आपसे बात करेंगे, उनको कुछ कुछ याद नहीं रहता, उनको खुद का रूटीन याद नहीं रहता है, बूढ़े हो जाते हैं वो, उनको ऑलरेडी हार्मोन का प्रॉब्लम है, उनको बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. सुबह उठेंगे, पूछेंगे हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ टू वेयर साड़ी, हाउ टू ईट द फ्रूट. मतलब ये उम्र के साथ उन्हें होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल. या फिर कुछ कुछ लोगों को होता है साइकोलॉजिकल, बहुत सारे डिसीज है, एंड वेरी फ्रैंकली इफ आई टेल यू, साइकोलॉजिकल डिसीजेस आर वेरी डेंजरस देन दिस फिजियोलॉजिकल डिसीजेस. कुछ खराब हो गया है, कुछ बॉडी में है तो हम मेडिसिन लेके सुधर जाएंगे, बट साइकोलॉजिकल, दिस ब्रेन रिलेटेड थिंग्स ना, दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर. इसके लिए कोई कम Teacher, tough.
यस दे आर वेरी टफ, मतलब वो हैंडल करने के लिए भी टफ है और डिफिकल्ट होता है उनको रिकवर होने के लिए, ऐसे पेशेंट्स को। टीचर उनको उनकी लैंग्वेज का कैसे मालूम होती थी, वो भूल जाते थे। व्हाट उनको उनकी लैंग्वेज का कैसे मालूम होती है अगर वो भूल जाते हैं तो? सी भूल जाते हैं इन द सेंस वो भूल जाएंगे मेमोरीज को, वो भूल जाएंगे चीजों को यूज कैसे करना है, बट दे विल नॉट फॉरगेट। देखो अगर कोई छोटा बच्चा भी होता है ना तो उसको भी समझ में आता है कि माँ क्या कहती है, फिर वो या फिर आजू बाजू के लोग क्या कहते हैं। द लैंग्वेज इज समथिंग, दिस इज अ कनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट द स्किल। हम जो भी छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, दैट इज कम अंडर स्किल, बट दिस लैंग्वेज इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ द थॉट्स। ये एकदम जिनको लैंग्वेज पता भी नहीं है ना वो भी समझ जाते हैं वो। दैट इज अ डिफरेंट, साइकोलॉजिकल थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। आई डोंट वांट टू गो इन न्यूरोलॉजी, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। हम बस हेल्थ, हम डिसीजेस की बात करते हैं फिलहाल तो। या of the body is called as diseases, condition of a disturbance in the physiological and psychological processes of the body is called as diseases। ये भी याद रखना है, हर एक डिसीजेस के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, बराबर है? हर डिजीज का कुछ ना कुछ सिम्टम होता है। ओके, नाउ Yes. टाइप ऑफ डिसीज, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिसीजेस लाइक डायबिटीज। डायबिटीज सुना है, मोस्टली हर घर में डायबिटीज का पेशेंट आज है ही। यस Yes. टीचर, Yes. मैं डायबिटीज। 4 दिन में Yes, डायबिटीज, teacher. सॉरी कोल्ड का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा, बहुत लोगों को अस्थमा भी होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कम लोगों ने सुना होगा, बट दिस इज अ टाइप ऑफ डीएनए रिलेटेड सिंड्रोम दैट इज आल्सो नॉट रिकवरेबल। देन हार्ट डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस में बहुत अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। रीजंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीजेस आर डिफरेंट। सब हर डिसीज का रीजन कुछ अलग होता है और उस हर डिसीज के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। ओके, to bring coordination in scientific study of disease, they are classified, इनको कुछ classification दिया हुआ है diseases का। okay, what are the types of diseases according to duration? chronic diseases and acute diseases। इन्होंने थोड़ा उल्टा दिया है, acute पहले लिखना चाहिए था, chronic नीचे लिखना चाहिए था। ओके, सो डिसीजेस देखो, अक्यूट मतलब और क्रोनिक मतलब क्या? अक्यूट मतलब फॉर अ स्मॉल थिंग, स्मॉल ड्यूरेशन और नॉट सो सीवियर, समझा? क्रोनिक मतलब फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मीन्स नॉट रेडिली रिकवरेबल, जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। जैसे इफ आई से अक्यूट डिसीज मीन्स कोई कॉमन कोल्ड है या फिर फीवर है और सम डिसीजेस डिसऑर्डर्स, ऐसे छोटे 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 ऐसे जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, जैसे जॉन्डिस है, दिस आर द अक्यूट। व्हाट इज अ क्रोनिक? लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, देन कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम टीबी। होता है। यस, टीबी इज अ क्रोनिक डिसीज, कैंसर इज अ क्रोनिक डिसीज, कैंसर इज अ मेजर क्रोनिक डिसीज। हम लोग नहीं उससे लड़ पा रहे। ओके, सो अक्यूट मतलब क्या? थोड़े ड्यूरेशन के लिए जो रिकवर होंगे। क्रोनिक मतलब डेंजरस, सीवियर, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेंगे और जल्दी रिकवर नहीं होंगे। समझा? यू गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू रीजन, अभी जैसे डिसीजेस को हम अगर रीजन से डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट, हेरिडेटरी डिसीजेस, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। ओके, hereditary diseases, the diseases which are came from heredity. What is heredity? heredity वर्ड तुम लोगों को आया है इसके पहले, कभी भी सुना है तुम लोगों ने? यस टीचर, हाँ ऊपर मिस, का ना, मैंने सुना है, ऊपर सुना है पर ऊपर। बस इतना अच्छे से याद नहीं, पर हेरिडिटी सुना है मैंने बहुत बार, सिक्स्थ में भी सुना था। ओके, मैम जो हमारे मम्मी पापा को रहता है वो हम लोग को आता है शायद से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, द हाँ वही वैसे ही diseases यस टीचर, वही। generation to generation. Diseases which are transferred from generation to generation are called as hereditary diseases. Example of such a disease is Down syndrome. किसी एक को डाउन सिंड्रोम है, उसके बच्चे को भी होगा, उसके भी बच्चे को होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, नॉन रिकवरेबल। इनसे जनरेशन की जनरेशन बाहर
नहीं निकल पाती, दे आर द हेरिडिटरी डिसीजेस। ओके, देन अक्वायर्ड डिसीजेस, जो अक्वायर हुई है बॉडी की वजह से, बॉडी के खराब कंडीशन की वजह से जो डिसीजेस ने अटैक किया है, दे आर द टाइप ऑफ, जो भी चीजों ने अटैक किया है इसकी वजह से बॉडी आपकी खराब हो गई है या हेल्थ आपकी खराब हो गई है, दैट इज द अक्वायर्ड डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीज, किसी पैथोजन ने मुझे इन्फेक्ट किया और उसकी वजह से मुझे कुछ डिसीज हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज। देन नॉन टीचर इन्फेक्शियस डिसीजेस, एक मिनट, आई विल जस्ट कंप्लीट एंड देन आई विल मूव टू यू। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इसमें किसी पैथोजन ने या किसी बाहर की चीज ने मुझ पे अटैक नहीं किया, बट मेरे अंदर जो स्ट्रक्चर, मेरे अंदर जो ऑर्गन है उन्हीं की कमजोरी की वजह से या फिर उन्हीं की फंक्शनैलिटी के डिस्टर्बेंस की वजह से अगर मुझे कोई डिसीज हुआ, then they are non-infectious disease. Pathogens are not involved in this. Example, diabetes. जब किसी को भी डायबिटीज होता है, इट डजंट मीन कि किसी पैथोजन ने मुझे बाहर से आके मारा और मेरे पैंक्रिया खराब हुए, देन आई गॉट द डायबिटीज प्रॉब्लम। नो, वाई डायबिटीज वॉज देयर, मैं बहुत खाए जा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मेरा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है और स्टोर नहीं हो रहा है, वो यूरिनेट नहीं हो रहा है, वो बॉडी के अंदर आ जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल मेरा एक नॉर्मल वैल्यू के आगे चला जाता है उसकी वजह से। ओके, दैट इज द डायबिटीज। मेरे पैनक्रिया के सेल काम नहीं कर रहे, मेरे अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, वाई? बिकॉज मेरा पैनक्रिया काम नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज मैंने खुद के हैबिट का, मैंने खुद के लाइफस्टाइल का, मैंने खुद के डाइट का ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से डायबिटीज। डायबिटीज का मेन प्रॉब्लम यही है कि हम अपने बॉडी को एक रूटीन में नहीं रखते, इसी की वजह से डायबिटीज होता है। दिस इज द मेन थिंग। कुछ लोगों को लगता है कि जो शुगर ज्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज होता है, रॉन्ग, उसका डायबिटीज से कोई संबंध नहीं है। एक बात ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे बॉडी के लिए बहुत चीजों का लिमिट है, उसी के तरह ग्लूकोज के लिए भी हमारे बॉडी में लिमिट है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हमारा बॉडी ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है, बट दिस इज नॉट सेम विद द फैट। फैट के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए कोई भी बंदा कितना भी बारीक हो सकता है और कितना भी मोटा हो सकता है। फॉर फैट, फॉर ट्राइग्लिसराइड्स देयर इज नो लिमिट, बट फॉर ग्लूकोज देयर इज अ लिमिट, और वो लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। अगर वो लिमिट को क्रॉस कर गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो डायबिटीज होगा। जिस किसके भी माता पिता को डायबिटीज है या फिर जिससे भी डायबिटीज है, उनके बच्चों को भी डायबिटीज होने की बहुत सारी चांसेस है। नाउ व्हाट टू डू, अगर ऐसा कुछ है, व्हाट टू डू, इट डजंट मीन कि वो हेरिडिटरी डिसीज है, मैं बोल रही हूँ चांसेस है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? द ओनली वन बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी डिसीज इज रिलेटेड एक्सरसाइजेस। इट कैन बी योगा, इट कैन बी मेडिटेशन। और आजकल तुम लोग देखो, बहुत लोग हेल्थ चैलेंज ले रहे हैं, बहुत बच्चे अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग गो टू जिम, आई एम सेइंग सिंपल नॉर्मल 10-10 मिनट का एक्सरसाइज विल ऑल्सो तुम लोगों को बड़े बड़े डिसीजेस से बहुत दूर लेके जाएगा, हेल्दी रखेगा। आज भी बहुत लोग खुद के हेल्थ के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को। बट वाई? बिकॉज आजकल हेल्थ के लिए बहुत लोग क्यूरियस हो गए। कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बस सलाड ही ज्यादा खाते हैं, बाकी राइस कम खाएंगे, ये कम खाएंगे, वो कम खाएंगे, जंक फूड कम खाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हेल्थ हमारे लिए जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि कम खाओ, ये ना मत खाओ, वो मत खाओ, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। पहले के लोग, मराठी लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, भाकरी रोटी ऐसे खाते हैं, पराठे खाते हैं। कुछ साउथ वाले होते हैं, वो उनको राइस ये है। हर किसी का जेनेटिक अलग अलग है, जिनको जो जमता है वो खाता है, उनको पचाना कैसा है अपना खाना वो भी है। जैसे साउथ वाले लोग होते हैं दही खाते हैं राइस के साथ, वाई? बिकॉज उतना जो है वो पूरा बॉडी में ये हो जाए। भाकरी के लिए हमें कुछ ज्यादा ये नहीं लगता, सिंपल ठेचा या थोड़ी सी सब्जी भी हो जाए, वाई? बिकॉज उसमें फाइबर होते हैं, वो जल्दी ये हो जाते हैं, पच जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसका कुछ इशू नहीं है। हर किसी का खाना, हर किसी के खाने के कॉम्बिनेशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि इसके साथ ये खाता हूँ, उसके साथ वो खाता हूँ, बट वो ऐसा नहीं होता है। जो हमने इतने सालों से जो हम खा रहे हैं, जो भी है, या हमारा पहले लाइफस्टाइल जैसा था, अभी वैसा नहीं रहा है। एवरीथिंग इज स्ट्रेस, हर चीज में आ गया है।
बट अगर आप लोग सोचोगे कि पहले के जमाने में जैसे ये वो रहते थे ना पहले के लोग, तब तो एनवायरनमेंट भी अच्छा था, खाना भी अच्छा क्वालिटी का था, लेकिन तब लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी थी और बहुत सिंपल थी। इसकी वजह से हेल्थ तब उतने डिसीजेस नहीं होते थे, सच बोलती हूँ, और तब इतने मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, हम जो खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कम है, फाइबर कम है, सब कुछ कम है, हमें अलग पाउडर चाहिए, तो सब कुछ चेंज हो गया है। बट इट डजंट मीन कि हमको हेल्थ का केयर नहीं करना है, हेल्थ का केयर तो करना ही है। ओके, ये तो हेल्थ का कुछ जनरल बातें मैं बोल रही थी। ओके, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में ये बोल रहे हो कि बाहर से हमें इन्फेक्शन नहीं होता, मेरे अंदर के बॉडी के का मैंने ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से मुझे कुछ कुछ चीजें होने लगी साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल, दैट आर द नॉन इन्फेक्शियस। ओके, हार्ट डिसीजेस है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत लोगों को पता होगा, अचानक से कोई एक हार्ट अटैक में भी ऑफ हो जाता है, बाद में पता चलता है अरे कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया था, लाइक दैट। ओके, ये डिसीजेस का ये बहुत ही छोटा सा अच्छा सा सिंपल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। इतना हम लोग अभी हम ये लेसन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नाउ इट इज 5:05, पेज नंबर 7 पे हमें बहुत बड़ा टेबल दिया है, नो प्रॉब्लम, वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके, आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर नाउ। ओके, आई थिंक योर सेकंड लेक्चर इज आल्सो देयर ना? Yes, miss. ओके Yes, फाइन, teacher. Bye, teacher. Bye, miss. Bye, miss. बाय।